Hey PM student, I'm again back with a new topic, and guess what topic is? Variance, my favorite. As you know, if you will watch the previous video from the variance topic from my YouTube channel, trust me guys, variance is no longer challengeable. If you have gone through my notes which I have shown in the screen in the video, trust me, video variance is no longer challengeable. And again, I am back with the variance question from the latest examiner report, that is the March-June 2026 published by ACCA. See guys, in section B, they have asked the variance question, and trust me, if you get the question from the variance, especially in section C and B, you can grab maximum marks. Trust me, variance is most easy topic. As I said earlier, जैसे मैंने पहले भी बताया था, like if you get the variance question in especially in section C long one, you can see majority of marks has been allocated for the calculation part. Majority of marks, whereas in performance measurement and control you can see they will allocate few marks to the calculation. Majority of marks were allocated for the interpretation, but in variance you can see out of 20, 10 to 12 marks has been allocated for the calculation. And see, if you know the formula and if you calculate the things very well, you will grab the full marks. And if you have not watched my video from the variance topic, guys, go and just watch it. It's worth it. Trust me, it's worth it to watch that video, because variance एक ऐसा टॉपिक है, अगर मान लो सेक्शन A, B, C में अगर आपको आ गया, पासिंग चांस बहुत बढ़ जाएंगे. वेरिएंस में मार्क्स इजीली ग्रैब कर सकते हैं. कोई नहीं, इतना बोलने के बाद लेट्स ट्राई दैट दिस क्वेश्चन. आपको खुद पता चल जाएगा. मैं फिर से नोट्स दिखाऊंगी, फिर से अपना फॉर्मूला दिखाऊंगी. और आपको वेरिएंस का वीडियो चाहिए, फॉर्मूला लर्निंग टिप्स, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी. आज हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन जो मार्च जून 2026 अटेम्प्ट में पूछा गया था वो क्वेश्चन करते हैं. एंड ड्राइजल कंपनी इस क्वेश्चन का नाम है. So in this section we will look in the detail at the case covering material mix yield variance from the syllabus area D, budgeting and control. ये जो कि ये एग्जामिनर रिपोर्ट है, इसलिए ये सब चीज लिखा हुआ है. ये भी कपलान किट में पब्लिश नहीं हुआ है. मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब बुक पब्लिश होगा तो वहां पे आ जाएगा, और मे बी इस पोर्टल में भी आ चुका होगा. और इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, एग्जामिनर के कमेंट्स भी देखेंगे उन्होंने क्या कमेंट किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट ने कैसा आंसर किया, क्या रॉन्ग हुआ. ठीक है. ड्राइजल कंपनी प्रोड्यूस सैलेड, ड्रेसिंग एंड सॉसेस. इट इज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. Its best-selling product is its standard salad dressing and Slado. In March, the following material variants were calculated in relation to the production of Slado. So they have already calculated the variance for the month of March. See guys, one more thing. While calculating the variance, just look for the which month examiner is asking you to calculate. Sometime they will provide the figure for the different month, and in that case, if you will pick up the wrong figure, again whole things will be worse. So that's why it's very important to read the requirement, like for which particular month they are asking us to calculate. So for the March month, they have already calculated the material price variance, mix and yield, and if you will add mix and yield, it will give us material uses variance. Dryzel also produce sweet salad dressing, honey dough, which is made by mixing honey, olive oil and vinegar. Standard material required to produce 1 liter of honey dough is as follows. So basically this is the standard cost card, guys. This is the standard cost card. What does the standard cost card means? The standard cost card means that how much quantity we need to produce 1 unit of the product. Here 1 liter of the honey dough. And one more thing guys, from here also student used to do mistake, because sometimes standard cost card used to give for the 100 unit of the product, and sometimes 1 unit of the product, or sometimes 1000. So just check for the how much unit the standard cost card is given, because while we are doing the calculation we used to use the like figure and like from the standard cost card for the 1 unit.
You got it? What I mean to say? What I mean to say, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको 1 यूनिट के लिए भी दिया जा सकता है एग्जाम में, 1000 के लिए भी देगा, 100 के लिए भी देगा, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक ही यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फिगर सब यूज करके परफॉर्म करते हैं. सो इफ दे हैव गिवन फॉर द 1000 और 100 यूनिट, उस केस में वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द 1 यूनिट. सो ये भी एक मिस्टेक पॉइंट है. यहीं पे मान लो 100 लिख दिया होता है, HUNDRED, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते बिकॉज वी कॉन्सेप्चुअली बैक ऑफ द माइंड रहता है, अच्छा 1 मिनट के लिए होगा, एज्यूम करके निकल पड़ते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ही लोग होते हो कहते हो कि मैंने तो सब परफॉर्म करके आया फिर भी फेल हो गया. दिस इज द रीजन. सी, फेलियर डज नॉट मीन्स कि यू डोंट नो द कंसेप्ट. You lack the you are lack of the preparation, but sometimes lack of technique also could lead to the failure. And technique like not reading the requirement properly, technique like in which format the examiner is looking for your answer, like it's near as 100, 1000, 2 decimal, 1 decimal. Sometimes you don't understand the ACCA verb. So these all are technique which if we ignore this technique, obviously it could be the one of the reason for the failure, even though you guys are very 100% sure in the concept. Okay, so 2 things I have mentioned here. So first thing, always check the requirement if they have mentioned particular month or year for the variance calculation. All right. Second, just check whether the standard cost card given for is it for the 1 unit or for 100 unit or 1000 unit. Okay, so in our case they have given for the 1 unit, so we are pretty much sure. Then in March, 50,000 liters of Honido were produced. Actual material used in the production of Honido were as follows. So again, so they have just given the March month information for the other product. Okay, now first question, the question is asking which of the following would be valid reason for the material price variance for Slado in the March. Material price variance. So material price variance, let me recap with the formula. I think that will be the most effective explanation if I will explain this thing with the formula. Just wait for the 5 minutes. Okay, so here is my formula sheet. This is my notes. Okay, so we are reading for the material. Okay, that's fine. That was below also. Just wait. यहाँ नीचे में भी था. Yes, here it is. ठीक है. तो प्राइस वेरिएंस अगर देखोगे, सो SP इंटू AQ माइनस AP इंटू AQ होता है, ये फॉर्मूला है, राइट. सो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे, SP और AP की वजह से आता है. मान लो we expect 10, actually we paid 8. जब सामान खरीदते वक्त we actually have paid 8. सो यहाँ सेविंग हो रही है. सेविंग मीन्स फेवरेबल आया, हम लोगों ने सेविंग किया. अगर वही ज्यादा पे कर दे एक्चुअल प्राइस, उस केस में एडवर्स आता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन, इफ यू लुक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेटेड बाय देम इज 35,000 फेवरेबल. 35,000 फेवरेबल. और ये किसके लिए पूछ रहे हैं? स्लाइडो के लिए. स्लाइडो के लिए ऑलरेडी दे हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंस, सो वी डोंट नीड टू टेक ए हेडेक एंड कैलकुलेट द थिंग्स अगेन. सो मटेरियल प्राइस फेवरेबल मतलब हम लोग ने एक्चुअल में कम पैसे खरीद के मटेरियल को खरीदा है. ठीक है, बजट में ज्यादा था, जैसे एग्जांपल लिया 10 था एक्सपेक्टेड बट वी एक्चुअली पे 8. सो यहाँ पे सेविंग हुई ना, सो इसलिए फेवरेबल. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग which one out of these 4, which one could be the reason for the valid reason for material price variance. जैसे कि यहाँ पे फेवरेबल है, उसका रीजन क्या हो सकता है? So more raw material have been used in production than the expected. अगर हम लोग expected के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्चुअल में यूज करेंगे रॉ मटेरियल, उस केस में यूज वेरिएंस आएगा एंड दैट्स ऑल्सो एडवर्स मटेरियल यूज वेरिएंस आएगा. अगर हम लोग मोर मटेरियल यूज कर रहे हैं एक्चुअल में एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड. सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेनिंग मटेरियल एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस. ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राइस वेरिएंस, जो कि फेवरेबल है. ठीक है. नाउ बी, Slido has been sold to customer for lower price than expected. ओके, सो अगर हम लोग ने स्लाइडो को कम प्राइस में बेचा, किसको? कस्टमर से एज एक्सपेक्टेड, इससे क्या आएगा हमारा?
सेल्स प्राइस वेरिएंस आएगा, वो भी नेगेटिव, दैट मीन्स एडवर्स। सेल्स प्राइस वेरिएंस, हम लोग यहाँ परचेज की बात कर रहे हैं, बेचने की बात ही नहीं हो रही है। सो यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का पूछा जा रहा है। सो अगेन सेकेंड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज एक्सप्लेनिंग फॉर द एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस। ठीक है। थर्ड, परचेज प्राइस फॉर द एटलीस्ट वन ऑफ रॉ मटेरियल यूज वाज हायर देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो अगर मान लो कि कोई ABCD 4 प्रकार के मटेरियल यूज होके स्लाइडो बना हुआ है, जिसमें से एक मटेरियल को हम लोगों ने हायर में पे करके तब सामान खरीदा एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड, उस केस में हमारा प्राइस वेरिएंस नेगेटिव आता और एडवर्स कहते हैं। बट इन आवर केस मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज फेवरेबल, सो दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। ये वैलिड रीजन कब होता है? जब हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस नेगेटिव आया होता है इन एडवर्स। D. Raw material supplier have offered trade discount to diesel company purchase. Yes, this could be a reason for the favorable material price variance, क्योंकि डिस्काउंट पाने की वजह से हम लोग ने वो मटेरियल को सस्ता में खरीदा एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड प्राइस, इसी वजह से कॉस्ट सेविंग हुई और हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया। सो आप यहाँ कमेंट भी देख सकते हो एग्जामिनर का। See how easy it is यार। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हो, कैसे वर्क करता है, क्या कहता है, वेरिएंस कुछ नहीं है गाइस। मैं तो किसी को भी बोलूंगी वेरिएंस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस रख लो, कहीं से क्वेश्चन पूछे आप फुल मार्क्स ग्रैब करके आओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question B. Which of the following is valid interpretation for the material mix variance for Slado in the March? Again किस प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है? Slado के लिए। किस महीने के लिए? मार्च। और क्या पूछ रहा है? इंटरप्रिटेशन का पार्ट किसके लिए? मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए। सो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जो कि 14,000 एडवर्स है। अब ये समझो मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या कहता है और क्यों कैलकुलेट करते हैं। सी, अब यहाँ पे जैसे स्लाइडो है, स्लाइडो में भी ABCDE करके 5 काइंड ऑफ मटेरियल यूज करके ये फाइनल प्रोडक्ट स्लाइडो बना होगा, दैट्स फाइन। और बजट के अकॉर्डिंग वी हैव डिसाइडेड, सपोज कि 1000 टोटल वाइज, जैसे ABCDE मैंने बोला ना 5 काइंड ऑफ मटेरियल यूज हुआ है, सो 5 काइंड ऑफ मटेरियल टोटली यूज करेंगे, तो 1000 kg सपोज यूज होके हमारा 1 यूनिट ऑफ ये स्लाइडो बनेगा। अब ये प्रोपोर्शन भी फिक्स रहता है, मान लो ए मटेरियल हम लोग 20% यूज करेंगे 1000 का, सो 1000 का 20% आपका 200 है ना। सो ऐसे एक प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल ए का हम लोग 20% यूज़ करेंगे, लाइक 200 हम लोग मटेरियल ए का यूज़ करेंगे। अगेन 30% कैलकुलेट करते हैं फॉर मटेरियल बी, सो 1000 का 30% मतलब आपका 300 ग्राम बी होगा। सो ऐसे एक प्रोपोर्शन डिसाइड किया है कि अगर 1000 हम लोग केजी मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसमें ए इतना होगा, बी इतना होगा, सी इतना होगा, बट एक्चुअल में क्या किया हम लोग ने ऊपर नीचे कर दिया एज डिसाइडेड, लाइक वी हैव जस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम द व्हाट वी हैव डिसाइडेड इन द बजट। और ये क्यों हम लोग ने ऊपर नीचे किया? क्योंकि वो सारे काइंड ऑफ मटेरियल कोई सस्ता होगा, कोई महंगा होगा, सो हम लोग ने सस्ता वाला जो मटेरियल था उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया। क्यों? ताकि हमारा कॉस्ट कम आए और लाइक फेवरेबल वेरिएंस आए। महंगे वाले को थोड़ा कम यूज़ किया कॉस्ट बैलेंस करने के लिए। बट सी, ये मिक्स वेरिएंस जब कब इफेक्टिव होगा? जब आप क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं करोगे तब, क्योंकि सस्ता मटेरियल ज़्यादा यूज होगा तो क्वालिटी बिगड़ेगा, इंस्पेक्शन में रिजेक्शन आएगी। इंस्पेक्शन में रिजेक्शन आने के बाद मान लो कस्टमर को बिक गया, कस्टमर रिटर्न कर देगा, सो इससे हमारे सेल्स वेरिएंस पे भी इम्पैक्ट आएगा, यूजेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, और मिक्स वेरिएंस तो आ ही रहा है, ठीक है। सो जैसे मैंने लॉजिक बताया कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब अराइज होता है, जब हम लोग मिक्स को, उस प्रपोर्शन को चेंज करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड। सो अभी हमारे केस में एडवर्स आया है, मीन्स ये कंपनी ने प्रपोर्शन को चेंज किया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी रीज़न क्या हो सकता है एडवर्स का। ओके, तो फर्स्ट क्या कहता है? हाई प्रपोर्शन ऑफ लेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल वेर यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ स्लाइडो। सी, मैंने बोला ना प्रपोर्शन को चेंज करने पे मिक्स वेरिएंस आएगा, और मिक्स वेरिएंस फेवरेबल कब आएगा, आई एम सॉरी एडवर्स कब आएगा? जब हम लोग सस्ते वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ किए होंगे तब, है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आई थिंक, एक सेकेंड ना, या सॉरी उल्टा बोला। सो एडवर्स कब, फेवरेबल कब आएगा? जब हम लोग सस्ते वाले आइटम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एडवर्स कब आएगा? जब हम लोग एक्सपेंसिव आइटम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तब मिक्स वेरिएंस में फेवरेबल एडवर्स आएगा। सो फर्स्ट वन क्या कहता है हमारा?
हाई प्रपोर्शन ऑफ लेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल वेर यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ स्लैडो। सो अगर मान लो हम लोग हाई प्रपोर्शन ऑफ लेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल यूज करते हैं स्लैडो को प्रोसेस करने के लिए, तो इस केस में हमारा मिक्स वेरिएंस क्या आता, फेवरेबल आता। बट अभी क्या आया हुआ है, एडवर्स। सो इसका अपोजिट होगा। सो हम लोग मोर एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल को यूज किया, प्रपोर्शन चेंज किया, हो सकता है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए चेंज किया हो। अब इसकी वजह से हमारा मान लो इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ, आई मीन इंस्पेक्शन मतलब हुआ और प्रोजेक्ट कम रिजेक्ट हुए, तो अच्छी बात है ना, है ना। या फिर कस्टमर ने रिटर्न भी नहीं किया तो सेल्स वेरिएंस भी अच्छा ही दिखेगा ना। सो बी इज रीजन कि जिसकी वजह से हमारा मिक्स वेरिएंस एडवर्स आया है। दिस कुड बी वन रीजन। हालांकि वो नहीं पूछ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड सी और डी क्यों नहीं है, और सी और डी देखा जाए तो अपोजिट है, हम लोग एक पढ़ते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड शुड हैव प्रोड्यूस मोर स्लैडो देन इट एक्चुअली डिड। अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए ये आपको इल्ड वेरिएंस को इंडिकेट कर रहा है। सो हम इल्ड वेरिएंस क्यों आता है, क्योंकि जितना मटेरियल यूज करके आउटपुट कितना निकालना था और कितना यूज करके हम लोग ने कितना निकाला। सो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज शुड हैव प्रोड्यूस मोर स्लैडो देन इट एक्चुअली डिड, और इसका उल्टा बोल रहा है नीचे वाले सेंटेंस में। सो बेसिकली इल्ड को इंडिकेट कर रहा है, ना कि मिक्स को, क्योंकि इल्ड में हम लोग आउटपुट देखे हैं कि मान लो हम लोग ने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था 1000 यूज करके 200 यूनिट बनाएंगे, बट एक्चुअल में 1000 यूज करके मतलब 1000 या फिर एक देखेंगे कितना यूज हुआ है क्वांटिटी, 200 बनाए कि 200 से ज़्यादा बनाए। इस केस में हम लोग इल्ड को देखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, आप कमेंट भी पढ़ सकते हो एग्जामिनर का। नाउ अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट, ठीक है। और एक और चीज़ जो मिस्टेक पॉइंट स्टूडेंट का, ब्लैंक स्पेस। जब भी ब्लैंक स्पेस दे ऑलवेज क्लिक इन योर, ऑलवेज थिंक दैट कि इन विच फॉर्मेट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द आंसर। जैसे इस केस में नियरेस्ट होल डॉलर में मांग रहा है, सो यहाँ अगर पॉइंट में लिखते हो तो मार्क्स लूज कर जाओगे। और क्या पूछ रहा है, एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या पूछ रहा है, एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूला। तो गाइज मेरा नोट्स खुल गया है, सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, उसके बाद इंफॉर्मेशन पिक करके वी विल राइट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला मैंने पहले भी सिखाया हुआ था आपको। सो एसपी, एक बार और एसपी लिखते हैं और एक बार और एसपी, सॉरी एपी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसके बाद बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे ए क्यू, फिर यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे, यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग ए क्यू, 2 बार ए क्यू, और यहाँ पे आके हम लोग डालेंगे अब एस क्यू, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी एंड इसको सी। सो नाउ ए और बी का जो डिफरेंस होगा दैट इज आवर मटेरियल यूज वेरिएंस, और बी माइनस सी का जो डिफरेंस होगा दैट इज आवर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब क्वेश्चन तो मिक्स का पूछ रहा है, सो मिक्स एंड यील्ड के लिए मैं एक और कॉलम ऐड कर दिया, इसका नाम दे दिया डी, और यहाँ पे एस पी विल बी सेम, और बट यहाँ पे एस मिक्स डाल देंगे हम लोग। तो नाउ आपका ए माइनस डी विल बी योर, ए माइनस डी विल बी योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, and D minus B will be your material mix variance. All right. Now, question asks us to calculate material mix variance. All right. So, question asks us to calculate material mix variance, and for which product? Be careful, eh? So they are asking for honeydew in March. So honeydew, this one, and they have also given the information for the month of March. So that's fine. So now we have used three products. I mean three kind of material. That is, one is honey, other is olive oil, and then vinegar. Okay, now SP means standard price that we have paid for the per kg of material, and in question they have given yes, $40, 40 per liter.
Okay, so just a second. Okay, just a second. So this will be our SP, which will be in dollar per liter. Okay, see dollar per liter में, और इसका वैल्यू 40 है एंड इसका वैल्यू 28 है एंड इसका वैल्यू 8 है. सो ये आपका एसपी किस फॉर्म में होगा? डॉलर पर लीटर. लीटर मतलब जो मटेरियल का लाइक अब किसी केस में केजी होगा, यहाँ पे लीटर है, किसी में डिफरेंट होगा, वो देखना पड़ेगा आपको. ठीक है. नाउ next thing we need a S mix and AQ. So AQ is also given in the question and AQ किस फॉर्म में होगा? आपका लीटर में. ये किस फॉर्म में होगा? लीटर में. Okay, so actual quantity used they have already given, so that is 11,800. Then next we have 22200. Then next we have 21,500. So if we will add all these, this is the figure, that is the total. In total we have used this much of the kg, total kg we have used this much. Okay, so by using 55,500 liter of all of these three kind of materials, we have produced final product of 50,000. Okay, and then for S mix means standard proportion for actual uses. So S mix mean standard proportion for actual uses. So if you can see this one, ये जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अकॉर्डिंग एक यूनिट के लिए कितना कितना यूज हुआ था, इतना इतना. सो इफ यू विल ऐड ऑल दिस, ये कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12. सो 1.2 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ये आपका 1. ये आपका 1.2 आएगा. तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन मीन्स ये 0.3 डिवाइड बाई 1.2, एक फ्रैक्शन प्रपोर्शन. सो आउट ऑफ आपका 1.2 उसमें 0.3 क्या है? हमारा हनी है. क्या है? हनी है. और स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ये हो गया. और एक्चुअल यूजेस जस्ट अभी जो नीचे कैलकुलेट किया ये है. ठीक है. सो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल यूजेस ये है हमारा. देन नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना. ओके, सो यहाँ पे फ्रैक्शन डाल देती हूँ सो दैट इट वॉन्ट मूव. सो फ्रैक्शन बोलो डॉलर, इसको फिक्स कर देती हूँ और कॉपी कर देती हूँ. ऐसा राइट. सो यहाँ पे अब ये अब ऑलिव ऑयल की बात करूँ तो कितनी है? 0.4 है. सिमिलरली विनीगर की बात करूँ वो कितनी है? 0.5 है. तो ये हमारा हो गया एस मिक्स. अब फटाफट वैल्यू को डालते हैं और कैलकुलेशन खत्म करते हैं. बात खत्म. तो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस. सो नाउ नेगेटिव में आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स. सो लेट्स सी द आंसर एज वेल. तो करेक्ट आंसर इज 7600. और ये इन्होंने पहले भी बोल रखा है क्वेश्चन में एडवर्स, तो हम लोग को सेपरेटली एडवर्स नहीं मेंशन करना पड़ेगा. एंड अदर थिंग इज कि उन्होंने नियरेस्ट होल नंबर में पूछा और हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी होल नंबर कोई पॉइंट वगैरह नहीं डाला हुआ है. सो वी गॉट आवर आंसर. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, यू कैन सी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द फेवरेबल मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर हनी कंपनी इन मार्च टू द नियरेस्ट होल डॉलर. सो हम लोग ने ऑलरेडी इतना तो कर लिया.
अब ये पोर्शन कैलकुलेट करके वी कैन कैलकुलेट द मटेरियल यील्ड वेरिएंस एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चीज चाहिए एसक्यू, और गाइस ट्रस्ट मी एसक्यू भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये हमारा क्या है, एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को कॉस्ट कार्ड में दिया है, दिस वन इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस वन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.3 लेंगे और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 50,000, सो 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार और करते हैं। ऑलिव ऑयल के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 0.4 एक यूनिट के लिए, और एक्चुअल में वी हैव प्रोड्यूस 50,000। अगेन एक बार और, विनेगर के लिए 0.5 है, एक्चुअल वी प्रोड्यूस 50,000। डन। अब यहाँ पे बस हम लोग SP इंटू SQ कर देंगे और इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। तो नाउ A माइनस D करेंगे तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा, और ये इसी सीक्वेंस से माइनस करना, अदरवाइज एडवर्स फेवरेबल में गड़बड़ हो जाएगा। ये फेवरेबल आ रहा है, एंड आई थिंक क्वेश्चन आल्सो मेंशन दैट कि टू फेवरेबल निकालने के लिए। यस, आंसर मैच हो गया, एंड सी ये इन्होंने बोला हुआ है फेवरेबल। सो गाइस सी हाउ इजी इट इज, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो, फॉर्मूला अच्छे से पता है तो देखो 2 से 2 4 ऊपर का 4, 8 मार्क्स तो आ गया। सी आउट ऑफ 10 मान लो 8 भी गेन कर लेते हो, इट्स वेरी गुड स्मार्ट। एक मार्क्स से भी हम लोग फेल हो जाते हैं, सो इट्स वेरी गुड मार्क अगर हम आउट ऑफ 10 8 भी स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्स इन टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस इज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, मिक्स वेरिएंस आर ओनली मीनिंगफुल इफ ऑर्गेनाइजेशन कैन वैरी द एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल इन द प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। ये मैंने वीडियो के पहले में भी कहा था, मटेरियल मिक्स कब एराइज होता है, मान लो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ कुछ प्रोपोर्शन था। जैसे इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग ने सोचा ये 1.2 मटेरियल एक यूनिट के लिए यूज करेंगे, ये तीनों मिलकर, और जिसमें 0.3 कितना होगा हनी, और ऑलिव ऑयल कितना होगा 0.4, एंड आपका विनेगर कितना होगा 0.5। सो एक परसेंटेज होता है ना कि लाइक इतना में इसका प्रोपोर्शन कितना। अगर ये एक्चुअल में ये चेंज हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हमारा मिक्स वेरिएंस आएगा फेवरेबल और एडवर्स में। अब सी फेवरेबल कब आएगा, इसमें से सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन है, हनी, अगर इसका हम लोग ने कम यूज किया, और सबसे सस्ता कौन है, विनेगर, इसका ज्यादा यूज किया, तो कॉस्ट क्या होगा, सेविंग होगा, इससे क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। बट क्वालिटी में इंपैक्ट आएगा, क्वालिटी में इंपैक्ट आएगा तो जो बनेगा, इंस्पेक्शन होगा, प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा, वेस्टेज होगा, फिर कस्टमर सामान को खरीदेगा भी नहीं, खरीदने के बाद भी रिटर्न कर देगा, सो सेल्स पे भी इंपैक्ट आएगा। अगर यही हम लोग हनी ज्यादा यूज करते हैं और लाइक विनेगर का कम कर देते हैं, इस केस में हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो मिक्स वेरिएंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, एडवर्स में आ जाएगा। सो मिक्स वेरिएंस तब ओनली कब यूजफुल होगा, जब आप क्वालिटी में इंपैक्ट ना लाकर तब क्रिएट करते हो, क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगी तो ये यूजफुल नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। सो फर्स्ट वन इज ट्रू। नाउ सेकंड, एडवर्स मिक्स वेरिएंस विल ऑलवेज गिव राइज टू द एडवर्स यील्ड वेरिएंस, नॉट नेसेसरी कि हमारा एडवर्स मिक्स वेरिएंस आ रहा है तो यील्ड वेरिएंस भी एडवर्स ही आएगा, नॉट नेसेसरी। सो ये आप एग्जामिनर का कमेंट भी पढ़ सकते हो फॉर दिस टू। सो फर्स्ट वन ट्रू और सेकंड वन फॉल्स। सो फर्स्ट वन ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकेंड वन के लिए क्या बोले, इट इज फॉल्स एज अ साइन ऑफ मिक्स वेरिएंस हैज नो बियरिंग ऑन दैट द यील्ड वेरिएंस। एज आई सेड, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव आ रहा है तो वो भी नेगेटिव आएगा। फॉर इंस्टेंस, ए फेवरेबल मिक्स कुड अराइज फ्रॉम यूजिंग द मोर लोअर कॉस्ट मटेरियल विच में एक्चुअली बी लोअर क्वालिटी एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द यील्ड। एग्जैक्टली, मान लो कि जैसे मैंने बोला, आपने फेवरेबल मिक्स वेरिएंस क्रिएट किया, वो कैसे क्रिएट किया, क्योंकि हम लोग ने जो चीपर मटेरियल था उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया, उसके और जो एक्सपेंसिव था उसको कम कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट तो सस्ता हो जाएगा, बट इससे क्या होगा, क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा। क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा तो जब इंस्पेक्शन होगा वो प्रोडक्ट रिजेक्शन होगा, वेस्टेज होगा, इससे क्या होगा, यूजेस वेरिएंस हमारा लाइक बढ़ेगा, है ना, और यील्ड पे इंपैक्ट आएगा, फाइनल आउटपुट पे इंपैक्ट आएगा।
ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइक ट्रायल कंपनी जो अभी रिसेंटली मार्च जून अटेम्प्ट में पूछा गया था। और देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी लिटरली। अगर मेरा नोट्स देखोगे तो हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा, हर एक कैलकुलेशन होगा। सो आई होप दिस इज यूजफुल नाउ, और आप वेरिएंस का क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।